Hello guys, today we will learn English by storytelling. So I'm just a beginner, but after 1 or 2 months I will show how I have improved myself. So if you also want to learn English, so watch the video till end. Hello guys, today I am going to explain you a chapter R.I.P. Van Winkle. This is only a easiest way that you can learn English. So the story name is R.I.P. Van Winkle. This story, यह कहानी is about R.I.P. Van Winkle. यह एक स्टोरी है रिप वैन विंकल के बारे में. A good nature, एक अच्छा प्रकृति वाला but lazy man, एक बहुत आलसी who goes away into the hills, जो पहाड़ों में जाता है and falls asleep, और वो सो जाता है. When he awakens 20 years later, जब वो उठता है 20 साल बाद, R.I.P. finds that quite. R.I.P. देखता है कि कुछ a few things have changed. कुछ चीजें बदल गई हैं. Many years ago, बहुत साल पहले, at the foothills, पहाड़ों के नीचे of the Catskill Mountains, Catskill के पहाड़ों में, was a little village, एक छोटा सा गांव था. In the village lived, उस गांव में a simple, एक सीधा साधा, good natured, अच्छा सौभाग्य वाला fellow named R.I.P. Van Winkle. एक इंसान रहता था, उसका नाम था R.I.P. Van Winkle. He was kind neighbor. वो एक दयालु पड़ोसी था. Ready to help anyone. वो किसी भी की मदद करता था. Everyone in the village liked him. पूरे गांव में सब उसको पसंद करते थे. The children of the village shouted with joy. गांव के बच्चे चिल्लाते थे खुशियों से जब वो उसको देखते थे. Because he played with them, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था. He taught them to fly kites. उसने R.I.P. ने उनको पतंग उड़ाना सिखाए and shoot marble, कंचे खेलना सिखाए and told them long stories, और उनको लंबी लंबी कहानियां बताई. The only problem with R.I.P. was, सिर्फ एक ही समस्या थी R.I.P. में, that he was lazy, very lazy. तो वो बहुत आलसी था. वो काम बिल्कुल नहीं करता था. He did no work on his own farm and just idled away his time. वह अपने खुद के खेत में भी काम नहीं करता था और बस ऐसे ही फालतू अपना टाइम बिताता था. His fences were falling to pieces. उसके जो बाड़े हैं वो गिर रहे थे. His cow were going astray. उसके गांव बाहर जा रहे थे फार्म के. Weeds were growing on his farm. Weeds मतलब जंगली घास उसके फार्म खेत में उग रही थी. R.I.P. consent companion with his dog. R.I.P. अपने डॉग के साथ रहता था named Wolf. उस डॉग का नाम Wolf था. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. वो काम के हटाने के लिए मतलब काम ना करने के लिए वो जंगल में चले जाता था अपने कुत्ते के साथ. One day, R.I.P. just walked. वह एक दिन R.I.P. चलता रहा and on and on and on and reached the highest part of the mountain. वो चलता रहा और चलता रहा और पहुंच गया सबसे ऊंची माउंटेन में, पहाड़ में. It was late in the afternoon. वह मतलब जो समय में वो पहुंचा वो the afternoon यानी कि दोपहर हो रही थी. When he reached there, जब वो वहाँ पे पहुंचा. Tired after his long climb, वो थक गया था उसकी लंबी चढ़ान के बाद. He laid down and began daydreaming. वो नीचे लेट गया और दिन के सपने देखते रहा. It was soon evening and he realized it would be night. और वो जल्द ही शाम हो गई और उसको लगा कि रात भी जल्दी हो जाएगी. By the time he reached his village, समय में उसको अपने गांव पहुंचना था. सो ये है R.I.P. वैन विंकल, जो बहुत अच्छा था पर लेजी था. वो बच्चों के साथ बहुत खेलता था.
Suddenly, अचानक से, he heard a voice calling out. उसने एक आवाज सुनी, R.I.P. Van Winkle, R.I.P. Van Winkle, जो चिल्ला रही थी, R.I.P. Van Winkle, R.I.P. Van Winkle. He looked around. उसने आसपास देखा and saw a short old man with thick hair and grizzled beard. उसने एक छोटा आदमी देखा with thick hair. उसके मोटे बाल थे और grizzled beard मतलब दाढ़ी बहुत अजीब सी थी उसकी. Walking towards him with a barrel. उसकी तरफ चल रहा था एक बैरल. बैरल ये होता है, ये बैरल होता है. He made signs to help him carry the barrel. उसने साइंस बनाए कि उसको बैरल में हेल्प करने के लिए. R.I.P. hurried to help the stranger who got his hand tightly. R.I.P. उस अजनबी, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी की मदद करने गया जिसने अपना हाथ टाइट से पकड़ रखा था. Together they reached a place where there were some more odd looking men. फिर वो एक जगह पहुंचे जहां इनकी तरह और बहुत सारे लोग थे. They were all dressed the same way. उन सब लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने थे पर कलर अलग था. And all of them had beards of various shape and colors. उनकी दाढ़ियाँ और उनके शेप अलग अलग थे. किसी की येलो दाढ़ी थी तो किसी की ग्रीन, किसी की पर्पल, किसी की ब्राउन. Even though they were playing a game. वो एक गेम खेल रहे थे. Their faces were serious and there was silence. उनके चेहरे एकदम उनके फेसेस गंभीर थे. सीरियस मतलब गंभीर. There was a silence. वहाँ पे एकदम कोई आवाज नहीं रही थी. The only sound was of noise of the balls. सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी बॉल्स की. जो वो 9 पिन्स खेल रहे थे तो उसमें जो बॉल होती है सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी. As R.I.P. and his companion reached them. R.I.P. और उसका साथी जब वहाँ पे पहुँचे तो they stopped playing and started R.I.P. fixed gaze. तो उनने गेम रोका और R.I.P. को एक फिक्स्ड गेज मतलब स्थिर टकटकी. R.I.P. was really frightened. R.I.P. जो था वो बहुत डरा हुआ था. His companion emptied the contents of the barrel into glasses. जो उसका साथी था उसने जो ड्वार्फ था मतलब जो बॉना था उसने बैरल से कुछ ग्लासेस निकाले और R.I.P. उसके अंदर कुछ था और R.I.P. से कहा इसको पी लो. उसमें कुछ था और R.I.P. उसने कहा कि R.I.P. से इसको पी लो. R.I.P. obeyed as he was trembling with fear. R.I.P. ने उसकी बात मान ली क्योंकि वो डर से जमा हुआ था. Since he was thirsty, वो बहुत प्यासा भी था. He drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. उसने कुछ ग्लासेस और पिए और वो एक गहरी नींद में सो गया. On waking up, जब वो उठा, he found that he was at the place. जब वो उठा तो उसने देखा कि वो एक जगह में है. Where he had first met the old man. जब उसने पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिला. He rubbed his eyes. उसने अपनी आँख मली. It was a bright sunny morning. वह एक बहुत अच्छी सुबह थी. Surely I have not slept here all night. उसने कहा पक्का मैंने यहाँ पे पूरी रात नहीं सोई होगी. Thought R.I.P. R.I.P. ने सोचा. He looked around for wolf. उसने अपने कुत्ते यानी कि भेड़ी मतलब उसके डॉग का नाम वुल्फ था. उसने उसको आसपास देखा. But he was nowhere. तो
वो कहीं भी नहीं था। R.I.P. whistled for him. R.I.P. ने सीटी बजाई. Wolf, wolf, he then shouted. उसने wolf wolf कहा. Shouted करा उसने. No dog, कोई dog was to be seen. कोई dog वहाँ पे था ही नहीं. Where has this dog gone? उसने अपने मन ही मन सोचा, ये डॉग कहाँ चला गया मेरा. ही मटन मतलब मन ही मन सोचा. टू हिमसेल्फ, अपने आप से. ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन्स. वो माउंटेन से नीचे उतरने लगा. टू गो बैक टू हिज विलेज. वो माउंटेन से नीचे उतरने लगा अपने गांव जाने के लिए. As he neared the village, जब वो अपने गांव पहुंचा, he met a number of people, but he didn't know any of them. तो उसने बहुत सारे लोग देखे, पर वो एक में से भी किसी को नहीं जानता था. The villagers, गांववासी, also started at him equally surprised. तो जो R.I.P. था उसके जैसे गांव वाले भी सरप्राइज हो गए, मतलब आश्चर्य हो गए. उसने भी पहले ऐसे इंसान आदमी को नहीं देखा था. Who is this man? उनने कहा, गाँव वाले ने कहा, ये आदमी कौन है? Said one, एक ने कहा, I have never seen him before. मैंने उसको कभी नहीं देखा पहले. Said another, दूसरे ने कहा, Look at this long white beard and his wrinkled face. देखो उसकी लंबी दाढ़ी और उसका विंकर्ड मतलब जो लाइंस बनती है स्माइल करते समय. विंकर्ड फेस. ऑन हियरिंग दिस, जब उसने यह सुना, R.I.P. stroked his chin and to his astonished. उसने अपने चिन में हाथ फैलाया और एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्य, अचंभव. He found his beard had grown a foot long. उसने देखा कि उसकी दाढ़ी 1 फुट लॉन्ग बढ़ गई है. And it was all white, और वो पूरी सफेद हो गई है. An old woman walked up. एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ बढ़ी. Him and looked at his face, और उसके चेहरे को देखा. For a moment, एक पल के लिए. Then she exclaimed, तो उसने exclaim मतलब suddenly, एक बार में. It was R.I.P. Van Winkle. उसने कहा, ये तो R.I.P. Van Winkle है. Welcome home again. अपने घर में स्वागत है. Old neighbor, पुराने पड़ोसी. Where have you been this 20 long years? तुम यह 20 साल से कहाँ थे? So guys, ये स्टोरी अडेप्टेड है द लेजेंड ऑफ R.I.P. वैन विंकल. वॉशिंगटन इरविंग ने लिखी है ये.